Good morning, dear aspirants. We are again back on our own platform of Biology Nagari with a NCERT section. बेटा इस इनिशिएशन में मेरी कोशिश ये है कि जब एनटीए की या इससे पहले जब सीबीएसई कंडक्ट कराती थी नीट को तो एजेंसीज तो बदल गई, सीबीएसई से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गई, लेकिन जो एक चीज कांस्टेंट रहा वो थी yes the pattern of NCERT. NCERT was also followed by CBSE and now also being followed by NTA. तो क्यों ना हम भी एनसीईआरटी पर ही अपना फोकस रखें। तो एनसीईआरटी अपने चैप्टर्स को, आप अगर स्पेशली बायोलॉजी की बात करूं मैं, तो आप देखे होंगे एनसीईआरटी ने अपने चैप्टर्स को सेक्शन वाइज बांटे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के फोकस पर हूं तो उसी के एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं बेटा तो एनसीईआरटी ने अपने पेज नंबर 290 पर स्टार्ट किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर को, और स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पैरा दिया है लगभग 1 से 1.5 पेज का। उसके बाद उसने 19.1 जो कि 19 चैप्टर है सीरियल में, तो 19.1, 19.2, 19.3 करते करते 19.8 तक में अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो हम भी अब एनसीईआरटी के एक एक पैरा को समझेंगे, उसके एक एक लाइन को क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से यही पता लगा कि एनसीईआरटी के बीच के एक एक लाइन से क्वेश्चन उठकर आया है। तो आप बेटा अपने साथ एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिएगा, मैंने भी रखी हुई है। आपको इंटरफेस दिखता रहेगा समय समय पर एनसीईआरटी की, ताकि हम देख सके कि एक एक लाइन कवर हो चुकी है। ठीक है बेटा। बेटा इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम 19.1 से 19.8 तक ना कवर करके पहला इंट्रोडक्टरी पैरा और 19.1 जो कि 290 और 291 पेज पर है, इसको कवर करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा ये आपको इंट्रोडक्टरी पैरा दिख रहा होगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो देखिए बेटा, बेसिकली दिस चैप्टर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 19 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, we are starting from the introductory parameter. After that, we will go on 19.1. Introductory para deals with what basically the excretion is. So the excretion is basically the elimination of metabolic waste. Beta, ध्यान देना, here we are not talking just about the waste. We are talking about highlighting the metabolic. It means there will be a metabolic process inside the cell. There will be a formation of waste, and that waste will be called the metabolic waste, and the elimination of these wastes are only considered as excretion, because there is a difference between excretion and egestion. Excretion is just the removal or the elimination of metabolic waste containing nitrogen particles, but egestion is the removal of undigested food and many things more. Okay. After that, NCERT is talking about the aquatic habitat. It means basically there is an excretion of three major excretory products: the ammonia, the urea, and the uric acid. So starting from the ammonia, basically all aquatic habitats. Basically, when we are talking about all aquatic habitats, during metabolic activities, there is a removal of a metabolic waste like ammonia. Let's see how. Let's say an example of amino acid. Think there is a metabolism of amino acid going inside the body. So let's draw a molecule of amino acid. Beta, this is the molecule of amino acid. Yes. You have already learned in the chemistry. This is the molecule of amino acid. Now see how. How we can eliminate the nitrogenous waste? First, this is our major waste, which is NH3. So we got our first and primary and a major metabolic waste, which is ammonia. Secondly, this is our next metabolic waste, which is CO2. But when we talk about these wastes, ammonia is higher toxic metabolic waste. It is very much toxic. It means the concentration, the accumulation of ammonia inside the body is very much dangerous. It can also lead to fatal death. So, when there is a requirement of elimination of ammonia, it requires very high amount of water. Needs
large amount of water for the elimination. That's why all aquatic animals, basically we are talking about teleos. Beta, what is teleos? Teleos is a special class of marine bony fishes which eliminates ammonia by the help of lots of water through by the surface of their gills. Okay. Now, we know that the elimination of ammonia requires high amount of water. So what about the terrestrial animals like us, like mammals? So the aquatic animals can pursue this type of mechanism, the removal of ammonia by the help of large amount of water. But what about the terrestrial animals? When we talk about terrestrial animals like us, the terrestrial animals does not have the capability to use such amount of water for the elimination of metabolic waste, because the organisms like us, like the mammals, has to conserve water for the future. So how can we do this? So now see how the elimination of ammonia in the form of urea is being pursued by us in our body. But now when we talk about the terrestrial animals like mammals like us, हम अपनी बात करें बेटा, तो हमें पता है कि जो अमोनिया, जो कि प्राइमरी सबसे पहला मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी बनाती है, वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि उसको एक जगह पर एक्यूमुलेट करना या फिर एलिमिनेट उसी फॉर्म में करना नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड सच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एलिमिनेशन. एक्वेटिक की बात अलग थी, उन लोगों के पास बहुत पानी था, वो लोग उसको डाइल्यूट कर करके उसी फॉर्म में एलिमिनेट कर देते थे. लेकिन हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड सच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया. तो हम क्या करेंगे? तो हमारे अंदर देखिए होने क्या वाला है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से अमोनिया बनेगी बेटा, ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके लीवर के अंदर, कहां पर ये काम होने वाला है? लिवर के अंदर. और लीवर में भी कहां पर? हिपेटोसाइट सेल्स में. लीवर के हिपेटोसाइट में क्या होने वाला है? मेटाबॉलिक वेस्ट जो अमोनिया CO2 बना, अभी हमने देखा कैसे बना, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके इसमें से H2O निकाल करके और अपने आप को कन्वर्ट किस में कर लेंगे? यूरिया में कर लेंगे. दिस इज यूरिया NH2CO NH2. अब यूरिया में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? हम इस फॉर्म में नहीं एलिमिनेट कर सकते. वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस इन दिस फॉर्म बिकॉज वी हैव नॉट सच अमाउंट ऑफ वाटर. तो हमारी बॉडी में, लिवर के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, ताकि यूरिया लेस टॉक्सिक फॉर्म है. अब इसको हमारी बॉडी आराम से एलिमिनेट कर सकती है थ्रू बाय बॉडी फ्लूइड, यूरिनेशन मिक्सचरेशन में निकल जाएगा. लेकिन अब ये सेफेस्ट फॉर्म है हमारे पास, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है उससे, अमोनिया से. और ये जो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया है लिवर के अंदर जो हो रहा है हेपेटोसाइट के अंदर, दिस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल. बेटा दिस इज नथिंग न्यू बट द यूरिया साइकिल. इसी को यूरिया साइकिल बोलते हैं. अब बेटा हम लोगों में यूरिया के फॉर्म में ही एलिमिनेट होता है. दैट्स वाई हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं. क्या है? यूरियोटेलिक एनिमल्स. बिकॉज we are eliminating our metabolic waste in the form of urea. That's why we are. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते थे वो अमोनोटेलिक, हम लोग यूरिया के फॉर्म में यूरियोटेलिक, और कुछ लोग, कुछ बर्ड्स बेसिकली यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने, हम अभी देखेंगे आगे कैसे यूरिक एसिड बनता है. तो बेसिकली यहाँ पर तीन टर्म्स की यूज की एनसीईआरटी ने, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. अमोनोटेलिज्म जब अमोनिया को एलिमिनेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और जो लोग करते हैं इस फेनोमेन का अमोनोटेलिज्म. हमारे में बेसिकली उस अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में चेंज करके, और हमारे में ही नहीं, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जितने भी पानी के मामला में गरीब एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर यूरियोटेलिज्म देखने को मिलता है. अब हमने दो मेटाबॉलिक वेस्ट को देख लिया, एक यूरिया, एक अमोनिया. अब बारी है यूरिक एसिड की. बेटा अब बेटा हम यूरिया बन चुका है, यूरियोटेलिज्म देख लिया. अब देखिए यूरिक एसिड के बारे में. बेटा यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें
तो ये बेसिकली जितने भी बर्ड्स होती हैं उनकी ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये बेसिकली पेलेट या हम लोग पेस्ट कह सकते हैं के फॉर्म में होता है। ये बेसिकली व्हाइटिश इन कलर होता है बेटा, और ये तीनों के कंपैरिजन में, चाहे वो अमोनिया हो, यूरिया हो और यूरिक एसिड, ये तीन मेन है। इनमें से सबसे कम टॉक्सिक ये होता है और सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट फॉर द एलिमिनेशन इसी में होती है। सो इट इज लीस्ट टॉक्सिक बेटा एंड नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हमारे में भी यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारे अंदर ये जो यूरिक एसिड बनता है बेटा, ये लगभग 1 ग्राम पर डे के हिसाब से बनता है। और हमारे में जो यूरिया बन रहा था, जो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी एलिमिनेटरी प्रोडक्ट है, वो 25 से 30 ग्राम पर डे के बेसिस पर बनता है। क्या? यूरिया। दैट्स व्हाई वी आर यूरियोटेलिक नॉट यूरिकोटेलिक। ओके, तो 3 कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और आप ध्यान से हमारे इंट्रोडक्टरी पैरा पे देखेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 290 पे, तो आपको साफ दिख रहा है ये सारे लाइंस को मेंशन की है एनसीईआरटी ने। और एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द ऑर्गेनिज्म। ये लाइन बहु एनसीईआरटी के 290 पेज पे दी हुई है। बट हम लोग क्यों बार बार एनसीईआरटी के लाइन पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जिसने भी एनालिसिस किया पेपर का, उसको यही समझ में आया कि एनसीईआरटी इज होल एंड सोल। ठीक है, अब बेटा आगे देखिए, यूरिक एसिड की और थोड़ी डिटेल में बात कर लूं तो यूरिक एसिड जब बनती है, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनती है। हाउ इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारे में यूरिया का फॉर्मेशन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया यूरिया साइकिल से हो रही थी लिवर के अंदर, लिवर के हेपेटोसाइट में, वैसे ही यूरिक एसिड बनती है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। और प्यूरिन में भी कौन सा प्यूरिन? वी नो दैट इज द गुआनिन। आपने बेटा डीएनए वगैरह कंसेप्ट में पढ़ा होगा, प्यूरिन पिरामिडिन, प्यूरिन में गुआनिन का नाम सुना होगा। इसी गुआनिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। कितना क्लियर हुआ बेटा? बेटा ये सारे हो चुके। अब कुछ लोअर क्लास एनिमल्स इवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑर्गन्स के बारे में बात किया है एनसीईआरटी ने। मतलब जब एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन सारे प्रोसेस के लिए एक स्पेशल ऑर्गन इवोल्यूट नहीं हुई थी एनिमल किंगडम में किसी एनिमल के पास, तो पहले भी तो ये प्रोसेस होती होगी, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग किंगडम में अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं फॉर दिस प्रोसेस। जैसे कुछ की एनसीईआरटी ने बात की है, उसकी हम भी डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा हम पहले प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया का ये पिक्चर एकदम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जस्ट इसी तरह का होता है। इसको और इलोबरेट करके मैं आपके लिए आसान कर देता हूं डायग्राम को। देखिए बेटा ऐसे, बेसिकली ये प्रोटोनेफ्रिडिया 2 सेल से मिलकर बनता है। देखिएगा बेटा यहाँ पे ध्यान से, एक ये वाला सेल ट्यूब की तरह दिख रहा होगा और एक ये वाला सेल, इन दोनों सेल से ही मिलकर के प्रोटोनेफ्रिडिया बना। इस सेल को अगर हम बीच में से ऐसे काट करके देखेंगे तो अंदर ऐसे ऐसे सीलिया दिखेगा हम, जैसे आग की लपटें लहरती है ना, वैसे ही। इसीलिए इसको फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। आग की लपटें की तरह सीलिया है बेसिकली, दीस आर सीलिया इनसाइड फ्लेम सेल, इसलिए फ्लेम सेल नाम है। और ये ट्यूबुलर सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। तो यही दोनों सेल मिलकर के प्रोटोनेफ्रिडिया बना है। होता क्या है सर? फ्लूइड आएगा इसमें, ऐसे आएगा, जो उसमें से बॉडी को रखनी होगी वो रखता जाएगा, बाकी वेस्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये था प्रोटोनेफ्रिडिया। ये होता था बेसिकली सम एनालिड्स में, प्लेटीहेलमिन्थस में, इन सब में होता था। इसके बाद एक छोटा सा मॉडिफिकेशन नेफ्रिडिया। अब देखो बेटा नेफ्रिडिया का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। There is not a very huge difference between protonephridia and nephridia, लेकिन उसको देखिए अब नेफ्रिडिया को मैं आपके लिए बनाता हूँ। नेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया को मैं यहाँ पर भी आपको डिफरेंस बता सकता हूँ। There is the difference between the selenocyte cell and the flame cell in the protonephridia and nephridia। मतलब सब चीजें वैसे ही रहने वाली है, बस यहाँ पर जो फ्लेम सेल के अंदर ये सीलिया है ना, वो
नेफ्रिडिया के केस में अंदर फ्लैजेला हो जाने वाला है, तो अंदर फ्लैजेला है, तो जब फ्लैजेला अंदर हो जाएगा तो उसको फ्लेम सेल ना कह के सेल सोलैनोसाइट्स कहेंगे, सोलैनोसाइट सेल। तो सोलैनोसाइट सेल और फ्लेम सेल यहीं पर डिफरेंस हो जाती है हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया में। मतलब फ्लेम सेल में सीलिया है और इसमें फ्लैजेला होगा बेटा, ठीक है। Let it be clear the difference between flame cells or monocyte cell is the determining difference between the protonephridia and nephridia। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया हो या हमारे में यूनिट होकर के किडनी एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन गया, ये सारे जहां पर भी हैं अपने अपने किंगडम में एक्सक्रीशन में ही मदद कर रहे हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 19 एनसीईआरटी का आप लोग इंट्रोडक्टरी पैरा मैंने बहुत अच्छे से एक एक लाइन कंप्लीट कर दिया है। अब बेटा देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइनें इंट्रोडक्टरी पैरा का हमने कवर कर लिया है। अगर आप एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं तो आपको दिखेगा, या मैं अपनी एनसीईआरटी का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने एक एक लाइन को मार्क किया हुआ है और उसको कवर किया हुआ है। तो इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट में 19.1 और 19.2, वैसे तो मेरा प्लान 19.1 भी इसी में था, लेकिन कुछ इशू की वजह से अगले लेक्चर में 19.1 और 19.2 का दोनों का एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज एनसीईआरटी आपको देने वाला हूं। सो बी कंटिन्यू इन माय चैनल। थैंक यू।